Good morning all. My name is Yatin Chaudhary and I am working as a scientist in rigid payment divisions of CSIR CRVI. So till now what you have studied about the flexible payments, right from the construction, designing, how do we design flexible payments, how do we construct it, how do we maintain it, everything, all the aspects have been covered. So now today we have 6 lectures about the rigid payments, so everything we will cover. Similarly, from the design part to the maintenance part, everything will be covered today. So first lecture is about the design of cement concrete pavement as per IRC 58/2015. So we'll have an example also in this, how to find out how to calculate the thickness, right? So first introduction, then we'll discuss about the factors that governs the design. Then we'll understand how does our slab, concrete slab, behaves under the load. Then under the environment, how does it behave? Then design of slab thickness. When we'll have an example in this. Then finally we will conclude about this highways. So what is the basic difference between flexible pavement and rigid pavements? Anybody? Like flexible means flexible, rigid means it is rigid. सपोज आपके पास आपके ऊपर कोई फ्लेक्स पेमेंट के ऊपर कोई लोड आ रहा है, सो इट वोंट डिफ्लेक्ट एज मच एज फ्लेक्सिबल पेमेंट डिफ्लेक्ट्स. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिजिड. बिकॉज आपके सपोज मैंने यहाँ पर रोड लगाया तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स फॉर एग्जाम्पल इट विल गो लाइक दिस, बट रिजिड पेमेंट विल बी लाइक दिस ओनली. सो इट वोंट डिफ्लेक्ट दैट मच बिकॉज उसका जो बाउल होता है इट विल स्प्रेड द एरिया टू द कॉन्क्रीट स्लैब. So very less load will go to the underlying layers. So this is the basic difference between the flexible pavements and rigid pavements, right? So ऊपर का ऊपर ही स्प्रेड हो जाता है. exactly, जो maximum load is taken by the slab, बहुत कम लोड आपका नीचे layers पे जाता है, सब गेट पे बहुत कम जाता है. So basic difference is that. So why rigid pavements? Why do we need rigid pavement? So do you want pothole free roads? Pothole, obviously we have seen that flexible pavements are prone to potholes. If you want pothole free roads, rigid payments, so discuss करते हैं ऐसी. So pothole free roads obviously, then what else? और क्या difference हो सकता है flexible payments में और rigid payments में? Stronger, आपके पास load, traffic load ज़्यादा है then bitumen, this rigid payments. अगर आपके पास load ज़्यादा है then आपके पास rigid payment एक option है. Then what other things? सपोज एक और ऑप्शन है, सपोज आपका अगर सबग्रेड स्ट्रेंथ इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर, योर सबग्रेड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर, देन यू कैन हैव एन ऑप्शन फॉर रिजिड पेमेंट्स बिकॉज मैक्सिमम लोड विल बी टेकन बाय द स्लैब. सो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास सबग्रेड का स्ट्रेंथ कम है सो यू गो फॉर द रिजिड पेमेंट, राइट. अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द बेसिक मैकेनिज्म्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, बट आई थिंक इट शुड. सो ड्रेनेज कंडीशंस, सपोज आपके पास एरिया है जिसमें ड्रेनेज कंडीशंस आपकी वैसे प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे आपका वाटर रिटेन करता है. सो व्हाट यू हैव ऑप्शन फॉर रिजिड पेमेंट बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट वाटर डज नॉट इफेक्ट रिजिड पेमेंट एज इट इफेक्ट्स द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स because stripping happens in the case of flexible payments. So bad drainage conditions if you have, then rigid payments you have option for. Then poor soil strength as compared to the, suppose आपके पास दो soil subgrades हैं, one is having a CBR of 8% and one is having a CBR of 4%. So and you do not have any option to change the CBR value or to improve the strength. So what you can do is you can go for the rigid payment because it requires less strength for the subgrade as if we compare with the flexible payment. So poor soil strength. Then if you want minimum maintenance roads, then what you can go for? You can go for the rigid payment because obviously we all know that maintenance is very minimum. I won't say that it is zero, but maintenance is very minimum in case of the rigid payments. So if you want all these things, what you have option for? You have rigid payment. So your rigid payment will be like this and it will perform as compared to the whatever you have designed. So abhi just I was reading about the Bhopal news, so I just came to know about this. मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में किया 6 लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण का भूमि पूजन. इट मीन्स इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये दीज आर नॉट माई वर्ड, दीज आर इंजीनियर्स वर्ड. अगले 30 वर्षों में सड़क को किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी. दीज आर द वर्ड्स ऑफ इंजीनियर्स, दे वर प्रेजेंट एट दिस भूमि पूजन. सो 30 वर्षों तक सड़क को किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी. बट हाँ, मैं बोलूँगा कि 225 करोड़
आपको 15 किलोमीटर बनाने के लिए 225 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, बट आपका 30 साल तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट यू विल हैव मेंटेनेंस फ्री रोड। सो मैं अभी जस्ट आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ अबाउट भोपाल, लाइक कितना उसके अंदर कॉन्क्रीट रोड्स हैं ना। देन अभी जस्ट मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया दिस कलियासोत। जब हम यहाँ पर आते हैं देन यू हैव सम पार्ट यू हैव रिजिड पेमेंट, सो दिस इज़ अबाउट दिस फोटोग्राफ्स। देन एयरपोर्ट रोड में कुछ सेक्शन में आपका रिजिड पेमेंट है। सो जस्ट मैं एक फोटोग्राफ ले लिया है दैट यहाँ पे अच्छा ये इट इज़ वर्किंग वेरी वेल बिकॉज मैंने देखा कोई क्रैक्स नहीं है, नथिंग लाइक दैट, सो आई जस्ट क्लिक फोटोज फॉर दैट। सो वी हैव डिस्कस्ड वाई रिजिड पेमेंट्स, लॉन्गर लाइफ स्पैन, गुड विजिबिलिटी एट द नाइट, प्रोवाइड स्मूथ कंफर्टेबल राइड surface, economical over its lifespan. It is economical over its lifespan. Initial cost is high, but overall it is economical. Then not much maintenance is required. Maintenance is required, but it is not up to ज़्यादा requirement नहीं है. Then high strength, obviously as compared to the flexible payments, it is having a high strength. Light colored, obviously aesthetically pleasing because obviously when you see a rigid payment, it looks good. White color की surface, so it is aesthetically pleasing. Low urban heat production, reduced requirement of artificial lighting because it reflects the light. Black top pavements absorbs the light, white color reflects the light, so it reduces the requirement of the artificial lighting. So basic, we all know about flexible payments, and these past 2 days we have read about the flexible payments. So क्या differences in basic? Flexural rigidity negligible in this in the flexible payments, then high, very high in the rigid payments. Lifespan, short lifespan, long lifespan. Then strength, its stability depends upon the aggregate interlock, particle friction and cohesion, whereas in this its structural strength is provided by the pavement slab itself by its beam action. Then we have surface deformation. Any deformation in the underlying layer is visible on the top surface. Suppose आपका subgrade fail हुआ और settle हुआ, then your whole pavement will be settled. आपका exactly ऐसा कुछ जाएगा, but it won't happen in this case of rigid payments. Then payment के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं रिजिड पेमेंट्स या फिर कोई भी पेमेंट, रिजिड पेमेंट या फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्या डिस्कस करते हैं? दिस इज अबाउट कॉन्क्रीट पेमेंट. सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज डिज़ाइन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन. देन मटेरियल्स, क्या हम मटेरियल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वेदर दे आर ऑफ प्रॉपर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, वी हैव टू चेक दैट. देन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेज इज डिज़ाइन, देन वी हैव टू चेक मटेरियल, देन कंस्ट्रक्शन, एंड फाइनली इज द मेंटेनेंस. पूरा पेमेंट, flexible, rigid, composite, whatever kind of payment it is that, so this all needs to be covered. So obviously in design we need, what we do is, what will be the thickness of our layers, DLC का कितना thickness होगा, PQC का कितना thickness होगा, all this is covered in the design part. Then material part, हम aggregate यूज़ कर रहे हैं, उसकी quality क्या होगी, उसका टेस्टिंग लाइक एलोंगेशन, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, पॉलिश वैल्यू टेस्ट, उसका क्या होगा, सब कुछ टेस्ट होगा मटेरियल पार्ट के अंदर. देन वाटर एडमिक्सचर वट एवर इफ़ वी आर यूजिंग फॉर कॉन्क्रीट पेमेंट, सो हमारा मटेरियल के अंदर आएगा. देन कंस्ट्रक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, वेदर फॉर हाई एक्सप्रेसवेज और वेदर वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट फॉर रूरल रोड्स, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर वो सब कवर हो जाएगा. देन मेंटेनेंस पार्ट, हाउ डू मेंटेन, सपोज आपके पास क्रैक आ भी गया है, देन हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू स्टॉप दैट क्रैक टू प्रोपोगेट, कितना हम उसको क्रैक को कम कर सकते हैं. ऑल दिस कम्स अंडर द मेंटेनेंस पार्ट. सो आज ये सारे पार्ट्स डिस्कस होंगे, डिज़ाइन, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. अभी हम कॉन्क्रीट पेमेंट के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. रिजिड पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. ऑब्वियसली मैंने बता दिया रिजिड पेमेंट क्यों बोलते हैं. रिजिड पेमेंट हैज़ हाई रिजिडिटी, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर अ रिलेटिवली वाइड एरिया ऑफ सॉइल. इट मीन्स फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंपैरिजन में इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ओवर टू अ वाइड एरिया. दैट इज़ वाई लोड उसके ऊपर लोड अंडरलाइंग लेयर्स में कम जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग बेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. लोड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्लैब एक्शन. मैं डिस्कस करूँगा स्लैब एक्शन एग्जैक्टली में क्या है. देन पेमेंट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक प्लेट रेस्टिंग ऑन अ viscous medium. Rigid payments do not bend under the loading like flexible payment. Rigid payments do not bend much. I have written much. They also bend, but they do not bend much under the loading like flexible payments. So according to IRC SP 83, we have 3 types of rigid payments: JPCP, JRCP, CRCP. JPCP means jointed plain cement concrete, jointed reinforced cement concrete, and continuously reinforced cement concrete.
सो दिस इज़ JPCP. आई थिंक सब लोगों ने आई थिंक ये सब देखा होगा बिकॉज मैक्सिमम लाइक 80% ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट्स आर लाइक दिस. So we have longitudinal joints, we have transverse joints, and in transverse joints, what type of bars we have? Dowel bars. Then in longitudinal, what do we have? Tie bars. So this is a JPCP, jointed, because it has joints, jointed plain concrete pavements. This is one example that I have taken picture from the internet. ये आपके this is longitudinal length, ये आपका tie bars इधर आएंगे, and then these are your dowel bars. Second one is JRCP, jointed reinforced concrete pavement. आपने देखा यहाँ पे joint नहीं है, so it is continuously reinforced. You can see यहाँ पर हमारा reinforced continuously goes to the length of the pavement. So and it's it is about 7 to 30 meters. One slab, I can say section is of 7 to 30 meters. Then we have CRCP, continuously reinforced concrete pavements. इसके अंदर क्या है? We have continuous reinforced in longitudinal direction as well as in the transverse direction. Continuous reinforcement, continuously reinforced. It is continuously reinforced up to its length. ये आपका एक just practical example है for CRCP. You can see कितना आपके पास reinforcement. You have to provide these reinforcement because you are removing joints. So joint remove करने के लिए आपको obviously कुछ ऐसा provide करना पड़ेगा so that your load gets transferred. So what do we do that? We हम provide करते हैं reinforcement continuously. So these are tie bars, longitudinal steel, then we have transverse steel, then longitudinal steel, CRCP. It looks like this, then longitudinal joints. So this is about CRCP. Like I have not seen CRCP in field. Just 99 or maybe I can say 90% cases में it is JPCP, jointed plain concrete cement. Components of rigid pavements discuss करते हैं. Like obviously we have subgrade, top 500 mm in case of highways and top 300 mm in case of rural roads. Subgrade we have discussed in flexible pavement, so it is kind of pura same. Then we have, what do we have is, we have sub base, and on the top of that we have PQC slab. This sub base is called as DLC, dry lean concrete, and over dry lean concrete we have PQC, pavement quality concrete. These are terms. DLC means sub base. Then we have PQC, top surface. In binder course we have flexible pavement, binder course, surface course. Here we have is PQC, pavement quality concrete. So आपके पास, so suppose if this is DLC and this is PQC, this is the longitudinal joint. ये आपका longitudinal joint होगा. Then all these are your transverse joints. Longitudinal joint के अंदर कौन सी bars होंगी? Tie bars. And हमारा transverse joints के अंदर हमारा dowel bars होंगी. Transverse joints can be of three types. First is our construction joint, then contraction joint and expansion joints. एक अभी last में we will discuss about these. So we have dowel bars in this, and these are the dowel bars that connects these two slabs, and this is tie bar that connects the lanes, right? Or surface texturing, because obviously we have to have proper skid. So what do we do is हम उसके ऊपर surface texturing provide करते हैं. Like you can see here, हम tining करते हैं. This is called as tining in transverse direction, so that हमारा अगर suppose vehicle move कर रहा है तो proper friction it should have. So what do we do is we provide tining to the surface. So this is kind of a surface texturing. So we'll discuss dowel bars. What is the main purpose of the dowel bar? Primary function for the dowel bar is to transfer the load from one slab to another slab. Suppose ये मेरा दो स्लैब हैं, स्लैब 1 एंड स्लैब 2. स्लैब 1 एंड स्लैब 2. सपोज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है अपना डॉल बार. मैं आई हैव नॉट प्रोवाइडेड डॉल बार. सो सपोज मेरा यहाँ पर ये मेरा व्हीकल है. सो ठीक है, ये दिस इज माई स्लैब. जस्ट कंसिडर दिस स्लैब. सो मेरा लोड आएगा, सो इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, राइट. नेक्स्ट दिस इज माई स्लैब नंबर 2. सो ये ऐसे था, तो ये स्लैब हमारा डिफ्लेक्ट हो गया. इट इज़ लाइक दिस बिकॉज सारा लोड हमारा जो है इसने लिया है. इट इज़ नॉट हैविंग एनी लोड. सो राइट, सपोज नाउ इफ आई हैव प्रोवाइडेड डॉल बार. अभी मैंने डॉलर प्रोवाइड कर दिया. सो व्हाट विल हैपन, अभी लोड आया तो दीज विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस.
together 50% or I can say 50% load will be taken by this slab, 50% will be taken by this slab. So पहले डिफ्लेक्शन सपोज इतना था, सो अभी स्लैब डॉल बार के बाद डिफ्लेक्शन सिर्फ इतना होगा. सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन फॉर द डॉल बार, टू ट्रांसफर लोड बिटवीन टू स्लैब्स. डॉल बार राइट, 32 mm डायमीटर वी विल डिस्कस इन कंस्ट्रक्शन. 32 होता है, लेंथ कितना होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे. एंड टाई बार का क्या फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन टू टाई, एज नेम सजेस्ट, टू टाई दीज टू स्लैब्स. इसमें कोई लोड का ट्रांसफर का ऐसा कुछ इशू नहीं है, लाइक बट इट टाइज द टू स्लैब्स, लाइक लेन 1 लेन 2 इट टाइज लाइक दैट राइट. ये एक पिक्चर है, यू कैन सी डॉल बार्स, these are doll bars and these are tie bars. Direction of the movement will be in this direction because this is a longitudinal joint and this is transverse joint. और ये हमारा क्या है? PVC sheet. This is our DLC, this is PV sheet and this is our PQC. अभी we'll discuss about the guidelines. Guidelines क्या कहती हैं हमारी डिज़ाइन करने के? How do we design through these guidelines? IRC 58 guidelines were first published in 1974. Then it got revisions. The second revision was brought out. The second revision was brought out in 2002. Continuous revision. Suppose मैंने कोई draft document बनाया, उसके अंदर suppose सर ने कुछ suggestion दिया that it should be like this. So then continuous revisions आते हैं. So first was in 1974, then 2002, 2011. Now what we are doing is we have 2015. So मैंने बेसिक डिफरेंस बताया, लाइक IRC 1974 में क्या था, 1988 में क्या एडिशन हुआ है. The guidelines, the first guidelines, Westergaard formula 1988. Yeah, in first guidelines, Westergaard formula and Taylor formula were used for this computation in 1988. After the upward revision legal load limit, the maximum load 81602, it got improved to the 1200 kg. Then 2002 उसमें क्या differences आए? We can have a look about this. Then 2011 में हमारा क्या revisions आए? Then right now what we are having is IRC 58 2015. इसमें क्या है, लाइक 2011 में क्या था? CFD फॉर BUC, क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज, BUC बॉटम अप क्रैकिंग, TDC टॉप डाउन क्रैकिंग. सो राइट नाउ इन 15 में हमारा क्या है, ये दोनों ऐड करने पर इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. बट इन 11 व्हाट वाज दैट, ये सेपरेटली 1 होना चाहिए था, 1 से कम होना, ये भी हमारा 1 से कम होना चाहिए था, ये भी हमारा कम 1 से कम होना चाहिए था. बट अभी वी हैव सम हमने कर दिया, इन दोनों का सम 1 से कम होना चाहिए. अभी 50, दिस इज अबाउट IRC 58. वी हैव IRC SP 62 ऑल्सो. 58 इज फॉर एक्सप्रेस वेज when you are having a volume of traffic more than 450 CVPD commercial vehicle per day. 450 से ट्रैफिक आपका ज़्यादा है, you have to go for the IRC 58. If it is less than 450, then what you have IRC SP 62, design of road for rural roads, expressways, highways, this is for rural roads. Basic difference. अभी difference क्या है, मैंने बताया 450 ज़्यादा है तो 58, कम है तो 62. Then repetition of loads, curling stresses and the computation of fatigue are not considered in the SP 62 because load is less, traffic is less, so fatigue is not that much important in the case of rural roads, so we do not consider the fatigue consumption. IRC SP 62 is only applicable for low volume roads which have average daily traffic less than 450. Same. This document covers the design principle of rigid payment of low volume roads having 3.75 meter. This payment means IRC SP 62. Basic. अगर 5.5 होगा तो हमारी अभी रूरल रोड्स बन रही है सर. Yes, 5.5 मीटर वाइड बन रही है. So SP 62 में आपको 3.75 मीटर के लिए ही given है. You have to change it. Like आपके पास then you have 58 में जाना पड़ेगा. जा सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट. हमारे साथ जो CVPD है, हाँ सर. एक कंडीशन मीट हो रही है 450 CVPD से कम है. यस सर. लेकिन विड्थ सर अपनी 5.5 मीटर जा रही है. यस सर. वो Then आप which code we should use? आपको यूज़ करना पड़ेगा सर. बट IRC में क्या है, IRC में कंडीशन है सर आपका ट्रैफिक का. हाँ. अगर आपको सपोज 3.5 से ज़्यादा है देन यू हैव टू यूज़ 62, बट आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देन यू फाइनलाइज योर 5.5 मीटर ऑफ लेंथ. तो कर्लिंग स्ट्रेस वगैरह निकालने पड़ेंगे. एग्जैक्टली वो मैं डिस्कस करूँगा. दोनों को डिस्कस करेंगे आज, 58 भी है, SP 62 भी. बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट डू वी हैव इज, दिस इज आवर सब ग्रेड. वी हैव GSB सेपरेशन लेयर, we have drainage layer, we have discussed in the flexible pavement drainage layer and sub base layer. Then we have DLC, then we have PQC.
Before PQC, we are providing a PVC sheet. Why we are providing PVC? What is the purpose for this sheet? मतलब क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या होगा? सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, या कह सकते हैं, राइट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोई अच्छा लाइक और कोई दूसरा कोई रीज़न? PVC शीट का हाँ, वो भी एक रीज़न है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं, एग्जैक्टली फ्रिक्शन के लिए भी है, वाटर के लिए भी है, बॉन्डिंग रिमूव करने के लिए है बेसिकली DLC का और उसका एग्जैक्टली सेपरेशन, बॉन्डिंग रिमूव करने के लिए। अभी हमारा क्या हो रहा है, वी आर रिमूविंग दिस PVC शीट, DLC है हमारे पास, जस्ट डायरेक्टली वी हैव PQC, सो दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डेड कॉन्क्रीट पेवमेंट, राइट। दिस इज debonded, we have bonded also. Debonded, we won't have PVC sheet in bonded, right? Bonded concrete pavement, we have debonded concrete pavements. So suppose if you do not have PVC sheet, what you can go for? You can go for the 30 to 40 mm bitumen also, bitumen layer kind of that. You just have to, आपको सिर्फ ये दोनों का बॉन्डिंग रिमूव करना है। आप PVC शीट से कर सकते हैं, बिटुमिन से रिमूव कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू सेपरेट आउट। ये लिखा है यहाँ पे 30 to 40 mm. Debonding layer of 30 to 40 BC2 over cement treated aggregate surface layer, right? So अभी हम आ गए हैं डिज़ाइन पार्ट पे। सपोज लैपटॉप मेरे को लेना है, लाइक आई वांट टू बाय लैपटॉप, उसके अंदर मेरे को क्या क्या चेक करना पड़ेगा? उसका हमारा रैम एक चेक करेंगे हम, कितना उसका स्पेसिफिकेशन है, देन वील मेमोरी उसका कितना है, उसका हमारा साइज़ कितना है, स्क्रीन साइज एंड ऑल। सो सब कुछ हम उसके अंदर पहले चेक करेंगे, देन वील गो फॉर द specification or purchasing of that. So similarly we have these factors that affects the design: axle load characteristics, wheel base characteristics, design period, design lane, traffic, temperature differential, subgrade characteristics, and concrete strength. So design factor, axle load characteristics. So the legal load limits for a single lane is 100 kN as per IS 58, for tandem axle 186 kN, and for tridem axle, tridem कल हमने देखा था स्लाइड्स में, लाइक इफ इट इज़ हैविंग 2 separate axles then we have tandem, then if it is having 3 separate axles then we have tridem. So सर हम क्या करते हैं अभी, लाइक सपोज हमें सर्वे करना है, ऑब्वियसली वी नीड टू नो द ट्रैफिक हमारा कितना है, कितना आने वाला है। सो व्हाट IRC सेज इज, आपके पास सपोज आपका CVPD इज़ मोर देन 6000, सो आपको कितने व्हीकल वे करने हैं लोड के लिए? 10%, जस्ट 10, आपके जो भी ट्रैफिक है उसके अंदर 10% आप अपना वे करिए व्हीकल, देन गो फॉर द डिज़ाइन। देन अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल्स आपके 3000 to 6000 है, देन यू हैव टू वेट 15% व्हीकल्स, एंड इफ इट इज़ लेस देन 3000 देन यू हैव टू वेट 20% ऑफ व्हीकल्स। व्हील बेस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर टॉप डाउन क्रैकिंग एनालिसिस, व्हीकल्स विद स्पेसिंग ऑफ एनी कंसेक्यूटिव एक्सेस लेस देन द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसफर जॉइंट्स आर कंसिडर्ड। ये फर्स्ट पार्ट डिज़ाइन के पार्ट आई विल एक्सप्लेन। अभी इसमें क्या है, स्टैंडर्ड व्हीकल में क्या है, दिस इज इफ लेंथ ऑफ दिस एक्सेल इज लेस देन द ट्रांसवर्स जॉइंट्स देन दिस व्हीकल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द टॉप डाउन क्रैकिंग। इट मीन्स लाइक सपोज हमारा एक जॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट। अगर दोनों एक्सेल हमारे इस स्लैब के ऊपर आ रहे हैं देन वी हैव टू कंसिडर इट। सपोज एक स्लैब, एक एक्सेल यहाँ पर है और एक आपका एक्सेल यहाँ पर है, सो वी डू नॉट हैव टू कंसिडर दैट व्हीकल फॉर द डिज़ाइन पार्ट, राइट, बिकॉज उसके दोनों एक्सेल आपके उसके स्लैब के ऊपर आने चाहिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड, लाइक दिस स्लैब, एक एक्सेल एंड देन सेकेंड एक्सेल, देन यू हैव टू कंसिडर दिस फॉर योर डिज़ाइन पार्ट। अगर एक एक्सेल यहाँ पर, दूसरा एक्सेल आपका इधर है, सो आपको वो रिमूव करना है, आपको कंसिडर नहीं करना है। डिज़ाइन पीरियड वी ऑल नो, ये ज़्यादा लाइफ स्पेन होता है, सो फॉर रिजिड पेमेंट वी डिज़ाइन इट फॉर 30 ईयर्स। ऑब्वियसली हमने डिज़ाइन किया 30 ईयर्स, 99% चांसेस होते हैं इट विल वर्क फॉर 30 ईयर्स इफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली। डिज़ाइन लेन, बिकॉज हमारे पास सपोज लाइक वी आर डिज़ाइन फॉर मल्टी लेन एक्सप्रेसवे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक लेन डिज़ाइन करेंगे, देन वी विल जस्ट दूसरी लेन्स के लिए हम सेम करेंगे। सो हमारे पास डिज़ाइन लेन कौन सी लेन हम डिज़ाइन करेंगे, लेन कैरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल इज़ आर डिज़ाइन लेन। सो हम इस लेन को डिज़ाइन करेंगे बिकॉज इसके ऊपर ज़्यादा लोड है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, तो बाकी लेन तो डिज़ाइन हो ही गया, कोई इशू नहीं है। ईच लेन ऑफ 2 लेन हाईवे एंड आउटर लेन ऑफ मल्टी लेन हाईवे इज कंसिडर्ड एज डिज़ाइन लेन। डिज़ाइन ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक शुड बी बेस्ड ऑन द एक अनदर कोड वी हैव IRC 9 ट्रैफिक सेंसर्स ऑन नॉन अर्बन रोड्स। Minimum growth rate is 5%. We have considered right now we are doing 7.5%. We also 6% हम लोग रूरल रोड में करें।
Okay, 6%. But yeah, ISP84 says 5% or depending on the condition. Then daytime is traffic for responsible for bottom-up cracking. I'll explain bottom-up cracking kya hai, then top-down cracking. Then when the tire imprint is away even for 150 mm/km, stress in the region is reduced substantially. Design traffic for bottom-up cracking, 25% of total two-way commercial traffic is considered as design traffic for two-lane roads. For a four-lane road, multi-lane divided carriage, 25% of the total traffic in the predominant direction is used for the bottom-up cracking. Because suppose हमारे पास 100 vehicles हैं, so हम 100 we do not have to consider, we just have to consider 25% of the total vehicles, right, for bottom-up cracking. And for top-down cracking we have to consider 50% of the bottom-up. Suppose हमने इसमें 25 vehicles लिए हैं, then we have to consider 50 vehicles in this. In case of the top-down cracking. आपने अगर 100 में से 25 ऊपर लिए हैं, हाँ, तो आप तो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि टॉप डाउन क्रैकिंग एनालिसिस 50% ऑफ यस सर, मतलब उसका 50% या 25 का 50%, करेक्ट, एग्जैक्टली, बारह सॉरी मैंने थोड़ा देन उसका मतलब इसमें टॉप डाउन में हमें कम कंसिडर करना है, बॉटम में ज़्यादा कंसिडर. डिज़ाइन ट्रैफिक फॉर्मूला वी ऑल नो 365 एंड ऑल. सो व्हाट इज ए, वी हैव ए इज लाइक initial number of commercial traffic per day in the year of when the road is open, then annual growth rate 7.5%, 5%, 6% ऐसा. Then design period. So हमारा commercial vehicles we can find out. Temperature differential, this is important now in case of rigid payments. Temperature differential between the top and bottom fibers of pavement causes the slab to curl, giving rise to the stresses. Like suppose दिन में क्या होता है, in day what happens, इसके ऊपर sunrays directly आ रही है, so इस बॉटम लेयर टॉप लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर लेयर, बिकॉज ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है. सो T1 इफ़ आई एम सेइंग इज एट लाइक 25 डिग्रीज, देन लोअर लेयर में क्या होगा 24 डिग्रीज, 23 डिग्रीज, 20, 19 लाइक दैट. सो टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द डे, राइट. सो ये जो हमारा वेरिएशन है टॉप में और बॉटम में, ये क्या करता है, ये स्ट्रेसेस डेवलप करता है. हमारे पास वेन एवर वी डिज़ाइन कॉन्क्रीट पेमेंट वी हैव टू डिफरेंट स्ट्रेसेस. फर्स्ट इज स्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ द लोड, जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर कितना, उसकी वजह से कितना लोड आ रहा है, दीज स्ट्रेसेस. और एक टेम्परेचर की वजह से हमारा कितना स्ट्रेसेस आ रहा है, 4 स्ट्रेसेस. सो हमको दोनों स्ट्रेसेस को लेकर वी डिज़ाइन आर कॉन्क्रीट पेमेंट. सो लोड वाला हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले हम टेम्परेचर वाला देख लेते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप हो रहे हैं. So during the day, temperature variation with the depth is non-linear. During night, this variation is nearly linear. Maximum temperature difference occurs during the day. Maximum differential मैं आपको फिगर के थ्रू एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ. या वी ऑल नो कंक्रीट इज वीक इन टेंशन. सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो पार्ट चेक करना है जहाँ पर हमारा टेंशन आ रहा है कंक्रीट के अंदर. अगर हमारा टेंशन टॉप लेयर में आ रहा है तो वी हैव टू चेक दैट. उसके अंदर हम क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे जो भी. अगर हमारा कैंटिलीवर है तो उसके अंदर नीचे आते हैं तो वो करेंगे. तो हम इसमें देखते हैं डे में क्या होता है. ड्यूरिंग द डे टाइम पॉजिटिव टेम्परेचर डिफरेंशियल, नॉन लीनियर टेम्परेचर डिफरेंशियल, ठीक है. क्या होता है, ये हमारा स्लैब है, राइट. यहाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. सो क्या होगा, ये T1 सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, 28, 29 लाइक दैट. सो ये क्या करता है, ड्यूरिंग द डे इट बेंड्स लाइक दिस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. बिकॉज सपोज क्या होगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारा कंक्रीट जो है एक्सपेंड करता है विद द टेम्परेचर. इधर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, सो क्या होगा, टॉप लेयर हमारी एक्सपेंड करेगी. ये टेम्परेचर हमारा कम है, सो इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. वो हमारा ट्राई करेगा कि बस अंदर कॉन्टैक्ट हो जाए. बट ऑब्वियसली इसका वेट होगा, इसका कॉन्टैक्ट होगा और सेल्फ वेट है. सो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं टू रेजिस्ट दिस बेंडिंग और दिस मूवमेंट. अभी स्लैब ऐसे है, वो ऐसे होगा, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. अब सपोज ये हमारा टॉप लेयर हमारा एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे हमारा कंप्रेसिव टॉप में आ जाएगा. ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस. एग्जैक्टली, टेंशन आ जाएगा, राइट. ये टेंशन आ जाएगा. टेंशन से हमें टेंशन चेक करना है, टेंशन, क्योंकि कंक्रीट में टेंशन नहीं आना चाहिए. सो अगर हमने इसको चेक नहीं किया, हमने इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया, तो क्रैकिंग डेवलप होगा नीचे से ऊपर तक. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बॉटम अप क्रैकिंग, राइट. एक्सप्लेन हो गया.
नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉटम अप क्रैकिंग। तो स्लैब ऐसे है तो स्लैब ऐसे तो यहाँ से नीचे से क्रैक डेवलप होगा एंड देन इट विल मूव अपवर्ड। सो दिस इज नोन एज बॉटम अप क्रैकिंग। सो इसमें कैसा रहेगा, डे ऐसा रहेगा, तो शेप आप ऑब्वियसली इतना तो आपको नहीं दिखेगा, बनने के टाइम से आप चेक नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं मानूँ कि इतना होगा तो आपकी स्लैब ऐसे रहेगी, तो आपकी स्लैब ऐसे दिखेगी आपको, राइट। और अगर आपका रात में आप चेक करेंगे तो स्लैब ऐसे को वो ऐसे दिखेगी, कर्लिंग अपवर्ड्स। सो दिस इज, ये एक्सप्लेन हो गया। डे टाइम में क्या होता है, नॉन लीनियर, ठीक है। देन कॉन्वेक्स शेप, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स शेप। then curl downwards because it is curling downward. Then tensile stress at the bottom up cracking. During night time what will happen, नाइट में क्या होगा, कॉन्केव शेप, एग्जैक्टली। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टॉप में टेम्परेचर कम होगा, देन नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो क्या होगा, कॉन्क्रीट एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो इट विल बिहेव लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज कर्लिंग अप, कॉन्केव शेप, टेंशन एट द टॉप। सो आपका जो क्रैक डेवलप होगा वो नीचे जाएगा, ऐसे वी शेप में नीचे जाएगा। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आपका स्लैब पूरा डैमेज हो जाएगा गोइंग टू द। और ये हो रहा है हमारा टेम्परेचर की वजह से। अभी हमने व्हील लोड तो डिस्कस ही नहीं किया है। सो इसकी वजह से, हमारा टेम्परेचर की वजह से क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। सो हमें ये स्ट्रेस चेक करने हैं, ये स्ट्रेस हम लेंगे, व्हील लोड स्ट्रेस लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, जो भी मैनेज होगा कैलकुलेशंस करेंगे। देन इसका थिकनेस होना चाहिए सपोज 300 हमने थिकनेस डिज़ाइन कर दिया तो हमारा दोनों स्ट्रेसेस चेक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा फिर। सो वी विल हैव टू डिस्कस बोथ। नाइट टाइम नेगेटिव लीनियर, कॉन्केव, कर्लिंग अप, टेंसाइल स्ट्रेस एट टॉप, टॉप डाउन क्रैकिंग। टेम्परेचर डिफरेंशियल, ज़ीरो स्ट्रेस। अब क्या होता है सर, जैसे ड्यूरिंग डे आवर्स द स्लैब हैज़ हाई पॉजिटिव टेम्परेचर। पॉजिटिव डिफरेंशियल जैसे मैंने अभी बताया, मैंने शायद नहीं बताया। So during the day hours, the slab has high positive temperature difference. Despite of this high temperature difference, the slab remains flat during the ironing process because of its plastic stage. अब हमने कंसल्ट करना स्टार्ट किया during the early hours like 5 AM 4 AM। क्या होता है, जब हमने स्लैब हमने कास्ट किया तो एक ऑब्वियसली जब वो हार्ड होने वाला है तो डे आ गया मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर आ गया। पॉजिटिव टेम्परेचर आ गया मीन्स टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो उसको कर्ल होना चाहिए, बट वो कर्ल नहीं होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ इन इट्स प्लास्टिक स्टेज। उस टाइम पर प्लास्टिक स्टेज में जब वो रहेगा और स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उस टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो स्ट्रेस टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसको स्ट्रेस आना चाहिए बट नहीं आ रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज़ इन प्लास्टिक स्टेज एंड दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो भी हमारा टॉप में और बॉटम में डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो स्ट्रेस temperature gradient. It won't have any stress at that point of time, right? The slab has no stress in this. The slab has no stress in this condition. The corresponding temperature gradient is zero stress temperature gradient. The maximum temperature differential during the day is 20 degrees Celsius. Then for stress computation it can be taken as 15 degrees Celsius. 5% reduction is not made for, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। सपोज आपका मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंशियल ड्यूरिंग द डे इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। सपोज आपका टॉप में आपने चेक किया तो 30 डिग्रीज आ रहा है, बॉटम में आपने टेम्परेचर चेक किया तो लाइक वी कैन से 20 आ रहा है। सो टेम्परेचर इज़ 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। सो इंस्टेड ऑफ 10 डिग्रीज व्हाट वी विल डू इज़ हम 5 डिग्रीज लेंगे, 5 डिग्रीज उसमें से माइनस करेंगे और वो जो 5 डिग्रीज होगा हम टॉप डाउन क्रैकिंग में ऐड करेंगे। द मैक्सिमम नेगेटिव टेम्परेचर डिफरेंशियल इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट फॉर 6 आवर्स। जब अपना नेगेटिव टेम्परेचर लाइक नाइट टाइम करते हैं तो 0 to 6 तक के लिए हम डिज़ाइन करते हैं एंड फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर डिफरेंस इज एज्यूम टू बी फॉर 6 आवर्स ऑफ 10 AM to 4 PM। अब हम सबग्रेड के ऊपर आते हैं। हमारा फ्लेक्सिबल में सबसे इंपॉर्टेंट सबग्रेड पैरामीटर क्या था? सबग्रेड पैरामीटर क्या करते हैं, उसमें क्या लेते हैं, या CBR लेते हैं फ्लेक्सिबल में, राइट? CBR 5% 8% जो भी हमारा वो चेक करेंगे CBR टेस्ट एंड देन ये हमारा स्लैब है, PQC स्लैब। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट इट बिहेव्स एज अ विस्कस मीडियम हैविंग स्प्रिंग्स। ये एक स्प्रिंग है, दीज आर स्प्रिंग्स, ठीक है। सो ये हमारा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम फॉर रिजिड पेवमेंट। स्लैब
and this is our subgrade, we can call it. So subgrade behaves on a viscous medium, behaves like a viscous medium having springs. These are springs. ये assumption है, so as to make our calculations. So basic हम अगर उसमें जाएंगे फिजिक्स में, दिस आर स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेसिक फिजिक्स में के, फोर्स आ रहा है या फिर फोर्स जो भी आ रहा है हमारा, सो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के एक्स, राइट. वी नो फोर्स, वी नो कितना उसके अंदर स्ट्रेच है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, तो F डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू के. दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. सेम इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, कितना हमारा सबग्रेड रिएक्ट कर रहा है टू दैट लोड, दैट इज कॉल्ड एज के. मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन सेम फॉर्मूला रहेगा उसका भी, के इक्वल्स टू पी. पी मीन्स लोड अपॉन सेटलमेंट और वी कैन सी डिफ्लेक्शन एक्स. सो के इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स. सो दिस इज, ये अब के कैसे निकालेंगे, ये के निकलता है हमारा प्लेट बियरिंग टेस्ट से. इसका प्रॉपर एक टेस्ट है प्लेट बियरिंग टेस्ट. इसके अंदर क्या होता है, ये दिस इज आर सैम्पल, देन दिस वी हैव प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. इसका कितना सेटलमेंट होगा, देन वी हैव डायल गेज, वी हैव दिस एवरीथिंग, वी हैव दिस इज ऑल सिस्टम. ये हमारा प्रॉपर एक टेस्ट है. इसका एक कोड भी है, आइस कोड, आई डोंट रिमेंबर क्या नंबर है, बट ये हमारा एक प्रॉपर टेस्ट है टू फाइंड आउट द के वैल्यू, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन. अब ये टेस्ट सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम्बर्सम लाइक लेबरस होता है. इसको बार बार हम, जैसे हम CBR करते हैं, जस्ट कुछ स्टेज पे हमने CBR किया, ठीक है, वैल्यूज़ आ गए, देन अगेन फिर हम जाते हैं फिर टेस्ट किया. सो ये टेस्ट हम इतने इजीली नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, IRC ने क्या किया, CBR को और K को कंपेयर करने के लिए एक टेबल दिया. सपोज़ आपका CBR वैल्यू ये है तो आपका K वैल्यू ये हो जाएगा. एक आपने, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, फिर उन्होंने एम्पिरिकल रिलेशन निकाला है K वैल्यू और CBR का, सोग CBR का. Subgrade is assumed as a Winkler foundation known as dense liquid foundation, Winkler model. It is assumed the foundation is made up of springs, मैंने अभी explain किया, made up of springs supporting the pavement slab. CBR of embankment soil is below 500 mm. Select subgrade should be dependent by the CBR of subgrade and its K value for design. Expensive soil should be compacted 1:1:3. ये construction part में we can discuss by modified Proctor test. So I was discussing about this. अब CBR टेस्ट करना तो इजी है, हम करते ही भी हैं. सो आपको क्या करना है, CBR टेस्ट करिए, फिर ये टेबल IRC में टेबल नंबर IRC में ये गिवन है एग्जैक्टली, मैंने वहीं से लिया है. सो सपोज़ आपका CBR आपने चेक किया, सोक CBR आपका 20 है, तो आपको K वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट K वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 69. सपोज़ आपका सोक CBR वैल्यू 10 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 55. सो अभी आपको प्लेट बेयरिंग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट CBR टेस्ट करिए, अपना K वैल्यू आपके आ जाएगा, और K वैल्यू आ गया तो उसको हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे. स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द फाउंडेशन एज डिटरमाइन द प्लेट लोड टेस्ट. प्लेट लोड टेस्ट करिए, या फिर अगर आप प्लेट लोड टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये टेबल वी कैन यूज़. हम यूज़ भी यही करते हैं, हम लोड टेस्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं. सो CBR आपका 7 है तो 48, 15 है तो 62. इफेक्टिव CBR का कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल में डिस्कस हुआ होगा, आई थिंक फ्लेक्सिबल पेमेंट में हो गया, राइट. सो इसमें क्या होता है, सपोज मेरा CBR 4% और लाइक कैन से 5% है, देन हमारा हम लेकर दूसरा कोई बोरोपिट से हम लेकर आए सॉइल, देन उसका CBR कुछ और होगा. सो इफेक्टिव CBR वी हैव टू कैलकुलेट, एंड थ्रू दिस चार्ट वी कैन हैव आवर इफेक्टिव CBR. एक्स एक्सिस में हमारा सबग्रेड का CBR, देन ऑन वाई एक्सिस वी हैव इफेक्टिव CBR, and these curves are of embankment CBR. like suppose आपका 35, suppose 30 ऐसे आपने ये वाला कर्व यूज़ किया, देन वहाँ पर जाएंगे आपका इफेक्टिव CBR आ जाएगा. अब मिनिमम CBR of 8% is recommended for the 500 mm of select soil. The modulus of subgrade reaction for the subgrade of an in-service payment to proper device define the following different. अगर आपका कोई आपको अपग्रेडेशन का करना है या फिर आपका ऑलरेडी पेमेंट है, then we can have following way diffractometer test, and through this FWD test we can find out the K value. The K value from FWD is the dynamic K value. The corresponding static K value can be estimated as 50% of the dynamic K value. कुछ उसने वैल्यू दिया, उसका 50% करके static value आ जाएगा, and then static value will use. So 8% CBR IRC recommend करती है, it should have 8% minimum CBR. Similarly सपोज़ ये एक मेरे पास
लेयर है, सॉइल लेयर या फिर सब बेस लेयर, उसका के वैल्यू है, सपोज लेट अस से के वैल्यू 25 सपोज, और आई कैन से 70। अब हमने उसके ऊपर एक और लेयर रखा, उसका के वैल्यू कुछ और है, सो कंबाइंड के वैल्यू ऑब्वियसली कुछ और होगा। एग्जैक्टली हम ऐड नहीं कर सकते या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो दैट के वैल्यू इज कॉल्ड एज इफेक्टिव के वैल्यू, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। Effective value of different combinations of subgrade and subbase can be estimated from the tables below. IRC कोड में exactly same tables हैं। आपको क्या करना है, सपोज आपने सबग्रेड का के वैल्यू आपने निकाल लिया, सपोज इट इज़ 28, राइट। अगर सपोज आपका ग्रैनुलर सब बेस है, अनट्रीटेड ग्रैनुलर सब बेस है और उसकी थिकनेस 150 है, सो व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट इज इफेक्टिव के वैल्यू विल बी 39। अगर आपका 300 थिकनेस है और आपका सबग्रेड का के ये है, देन यू गो लाइक दिस, सो इफेक्टिव के वैल्यू विल बी 88। सिमिलरली इन द केस ऑफ सीमेंट ट्रीटेड सब बेस, अगर आपका सीमेंट ट्रीटेड सब बेस है, सो 150 mm थिकनेस है, सो आपका 108 ये आपका इफेक्टिव के वैल्यू होगा, एंड देन यू विल यूज दिस इन द डिज़ाइन पार्ट, राइट। दिस इज अबाउट द GSB, this is about the cement treated, and this is about the DLC, same type of के वैल्यू फॉर सबग्रेड। ये आपका सबग्रेड का हो गया है के वैल्यू। इफेक्टिव के वैल्यू फॉर 100 mm DLC, आपका अगर आपका DLC है तो आपको 100 mm के लिए इफेक्टिव के वैल्यू विल बी 166, एंड अगर आपका थिकनेस इज़ 150, सो आपका इफेक्टिव के वैल्यू विल बी 208, और मे बी अगर 48 है तो 277, 55 है तो 300, लाइक दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर के वैल्यू, इफेक्टिव के वैल्यू। ये टेबल में गिवन है, कोड में गिवन है, सेम टेबल। सबग्रेड का के वैल्यू निकालिए, सब बेस आपका अगर ग्रैनुलर है तो आपको ये लेना है, अगर सीमेंट ट्रीटेड है देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस, अगर DLC है तो आपको यू हैव टू सेलेक्ट दिस। नाउ कंक्रीट, सबग्रेड हमने डिस्कस कर लिया, देन सब बेस हमारा के वैल्यू डिस्कस हो गया, देन कंक्रीट पार्ट। कंक्रीट वी ऑल नो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ we have to check because bending it, concrete pavement slab undergoes bending, so flexural strength हमें calculate करना है, then 0.7 FCK basic formula। FCK we all know, suppose M40 then 40, M30 then it is 30, हमारा flexural strength आ जाएगा। then yeah, in no case 28-day flexural strength of PQC shall be less than 4.5 MPa। अगर आपका 4.5 MPa से कम है then you cannot go for the PQC। PQC should be of having a flexural strength more than 4.5। then और दूसरे concrete properties क्या है, modulus of elasticity 4.5 means it's M40. M40 exactly sir, M40, because for rural roads IRC says M30 should be the minimum grade of concrete, and for highways M40 should be the minimum grade, so M40 means 4.5 flexural strength। This is about I-58. This is 58, this is for express national highways, 62 I'll deal later। so modulus of elasticity 30 MPa basic, then Poisson's ratio what we adopt is 0.15, commutator CT value 10 into 10 power minus 6, so 6, and flexural factor top 10 yes 28। ये हमारा जो फॉर्मूला था, this gives because 28 FCK M40 means 40, so it gives 28-day flexural strength, but in code में code has recommended to use 90 days flexural strength। so how to find out 90 days flexural strength, जस्ट मल्टीप्लाई और 28 डेज स्ट्रेंथ विद 1.1, सो आपका 90 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू, बीम कास्ट करिए, बीम कास्ट करने के बाद उसको 90 डेज पे चेक करिए, देन यू कैन फाइंड आउट योर 90 डे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और नहीं तो फिर 28 पे कास्ट करने के बाद 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन हैव योर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 90 डेज। सेपरेशन लेयर हमने डिस्कस किया, अ डीबॉन्डिंग लेयर ऑफ पॉलीथीन शीट वाइट और ट्रांसपेरेंट हैविंग अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 125 माइक्रॉन is recommended। IRC has recommended 125 micron thickness। wax based compound in place of plastic sheet can also be used। हमने bitumen भी देखा, bitumen we can also use, so different we just have to break the bond between DLC and PQC। same door bars, tie bars, this is DLC, this is PQC, and this is separation layer। stresses, I think this part we have explained, हमने discuss कर लिया है। temperature stresses के अंदर these occurs due to the daily variation, day, night, evening, morning, this part। this is about the seasonal variation during the summer में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, होल स्लैब का ज़्यादा होगा तो इट ट्राइज टू एक्सपेंड, देन उसका स्ट्रेसेस विल डेवलप। सेम विंटर में इट विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट देन एक्सपेंशन। सो
warping stresses are due to the daily variation, frictional stresses are due to the seasonal variation, winter, summer, like that, and wheel load stresses we have. CC slab is subjected to flexural stresses due to the wheel loads. Temperature stresses due to the temperature variation, top and bottom, curling stresses occur. Frictional stresses due to the contraction of slab due to the shrinkage or due to temperature in drop in temperature. Tensile stresses are induced as the middle portion of the slab because of the summer and winter season. So bottom of cracking. So अभी हम डिस्कस करेंगे about the wheel loads. ये हमारा व्हीकल मूव कर रहा है. सो कैसे बैंड होगा? इट विल बैंड लाइक दिस. सपोज आपका लोड आ रहा है तो इट विल बैंड लाइक दिस. सो व्हील आने के बाद इट विल बिहेव लाइक दैट, राइट. अब ये डायरेक्टली बैंड हो रहा है तो इसके अंदर क्या स्ट्रेसेस आएंगे? ऊपर क्या आएगा? फ्लेक्शन, राइट, लाइक दैट. अब ऊपर टेंशन कहाँ पर आ रहा है? टेंशन कहाँ पर है? सो इट विल बी लाइक दिस, क्रैकिंग, राइट. सेम उसमें एक्सप्लेन किया मैंने. व्हील लोड ये तब है जब हमारा कर्लिंग अपवर्ड्स है और आपका ट्रैफिक लोड आ रहा है. सो व्हील लोड हमारा क्रैकिंग जो हमारा डेवलप होगा लाइक दैट. मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक बार और. IRC हैज़ सजेस्टेड कि आपका एक्सेल कहाँ पर होना चाहिए ऑन योर स्लैब. दिस इज़ योर वन स्लैब. सो अगर आपका, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव 3 रीजन्स इन द कॉन्क्रीट पेमेंट, कॉन्क्रीट स्लैब, इंटीरियर, सेंटर एंड एज, राइट. और एज हमारा क्रिटिकल पोजीशन होता है, लाइक बिकॉज सेंटर में तो वी हैव सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द पोर्शन. सो stress at the center is minimum. Then we have corner पे भी we have it is free to move, so temperature stresses are not that much. So corner cracking is corner portion is also not that much critical. Edge portion is critical in the case of slabs. So we design our slab for the edge region. हमें पता है, like Westergaard has given 3 equations: stresses at edge, corner and middle portion. So that edge portion will give maximum stresses. So what we do is we'll design taking that edge portion. So we'll design our slab for the edge portion. So in the single axle, when your pavement, when your slab axle is this, so this is the critical position. And in the tandem axle, this is the critical position when your slab axle is at the middle. In tridem axle, when it is from the top some portion of the slab. So this is in IRC has given कितना होना चाहिए, then कितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए, what is the critical position for that. Location of maximum tensile stress at the bottom without concrete shoulders. This is the location for maximum tensile stress. कब हमारा maximum tensile stress develop? Because tensile stress we have to check. So maximum tensile stress तब develop होगा जब हमारा axles will be like this. मैंने explain किया TDC. This is about TDC. आपका ड्यूरिंग द नाइट आपका ऐसे कर्ल होगा, आपका व्हीकल इसके ऊपर आ गया है, राइट. अब अगर ये वाला एक्सेल इधर है तो मैं कंसिडर करूँगा या नहीं करूँगा? नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये इसको ऐड कर रहा है. सपोज ये हमारा स्लैब है, मैं इसको यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, इधर से ही प्रेस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल एडिंग टू द ब्रेकेज, इट इज़ एडिंग. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक दिस पोर्शन, दिस सिस्टम, बिकॉज ये यहाँ से इसको इट विल पुश, दिस विल पुश. सो ऑब्वियसली क्रैक तो ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेसेस, और ये भी पुश कर रहा है, ऐड कर रहा है. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ऐड दिस लोड इन एट दिस पोजिशन, एट दिस सिस्टम. इन दिस सिस्टम वी हैव टू ऐड दिस व्हील लोड. दैट इज वाई, बिकॉज अगर हमारा ये वाला एक्सेल इधर होगा सो ऑब्वियसली ब्रेक नहीं होगा ज़्यादा. सो दिस इज अबाउट द TDC लोकेशन. यू कैन सी इन सिंगल एक्सेल जब आपका दोनों है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू टेक दैट. अगर आपका टेंडम एक्सेल है, सो ये वाला एक्सेल एंड ये वाला एक्सेल लोड ओनली यू हैव टू टेक. एंड इफ इट इज ट्राइडम एक्सेल, दिस सिंगल एक्सेल एंड दिस ओनली दिस मच, दीज एक्सेल्स यू हैव टू कंसिडर बिकॉज दीज आर एडिंग टू द स्ट्रेसेस. बिकॉज ये तो आपके दूसरे स्लैब पर चले गए हैं, सो यू डू नॉट हैव टू कंसिडर दिस, ओनली दीज वन स्लैब, वन एक्सेल, 2 एक्सेल,
same in the case of that, and in the transfer direction single axle completely. So this is IIT Rigid software. This is about the software IIT Rigid. We can have IIT finite element using IIT slab we have. Then stress due to direction are small, thus ignored. In stress due to tridem axles are small. हमने calculate किया, then they have checked. So stresses due to tridem axles are small, thus ignored in BUC. BUC के अंदर we do not consider tridem axles. Front axle weight has been assumed to be 50% of the weight of one axle of the rear axle. So this is about the finite element, because मैं आपको explain करता हूँ ये this. IRC has given stress charts. Stresses due to single axle load of 80 kN. Temperature differential is 0 degree Celsius without concrete shoulder. So आपके पास you have to select this chart. ये chart कैसे develop हुए हैं? These are developed using the finite element modeling. Finite element FEM के through ये charts develop हुए हैं. And what is this? K values. K value at 40, 80, 128, 300. Like suppose आपका flexural stress, suppose it is this much. So K value is 100. So like this go and move downwards. So your slab thickness will be 250. Either use these. आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. आप या तो चार्ट यूज़ करके आप डिज़ाइन करिए, या फिर आप खुद कैलकुलेट करिए एक एक चीज़, एक एक फैक्टर, एक एक स्ट्रेस आप खुद कैलकुलेट करिए, कितना एज पे आ रहा है, कितना कॉर्नर पे आ रहा है. थर्ड ऑप्शन इज हैविंग अस एक्सेल शीट. IRC प्रोवाइड्स एक्सेल शीट फॉर द डिज़ाइन ऑफ पेमेंट. ये जैसे हमने वो जो रिग्रेशन करके जो चार्ट डेवलप हुए हैं, दीज आर डेवलप थ्रू द रिग्रेशन इक्वेशंस. सो रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन. K इज दिस, देन स्ट्रेस विल बी 0.08. दिस इज ऑल गिवन. ये पूरा दिस इज ऑल मैथमेटिक्स. देन 13 रिग्रेशन इक्वेशंस कैरिड आउट की है. देन वी हैव डिस्कस, देन वी हैव डेवलप्ड दिस चार्ट्स. सो दिस इज अबाउट द क्यूमुलेटिव फैटिग डैमेज. क्यूमुलेटिव फैटिग डैमेज फॉर BUC. For BUC and for TDC different at the, because BUC क्या होगा, it will be in the morning, so 10 AM to 4 PM. then TDC will be in the night, so 0 AM to 6 AM. so आपका ये है क्यूमुलेटिव फैटिग डैमेज. मीन्स कितना हमारा लोड या फिर हमारा जो पेमेंट है वो कितना डैमेज हो रहा है. सो कॉम्बिनेशन, सपोज इट इज़ 0.01 एंड दिस इज 0.02. सो दे शुड ऐड एंड दे शुड बी ऑलवेज लेस देन 1. लेस देन 1 क्यों? सपोज आपका कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ आपका है सपोज 4.5 और आपके ऊपर लोड, आपके पेमेंट के ऊपर लोड आ रहा है 4.6. सो रेशियो इज़ मोर, सो इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1. सो आपका स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी मोर देन द स्ट्रेस दैट आर कमिंग ऑन योर पेमेंट. सो दैट इज़ वाई CFD प्लस BUC प्लस CFD ऑफ TDC शुड ऑलवेज बी लेस देन 1. हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल एक, सो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट डिज़ाइन वैल्यू फॉर द वेरियस पैरामीटर्स. आपको थिकनेस, सॉरी आपका ट्रैफिक कितना होगा, आपका स्ट्रेंथ का CBR K वैल्यू, देन आपका कंक्रीट का कौन सा M40 M30 जो भी यूज़ करना है. सर वो भी डिपेंड करता है ऑन योर ट्रैफिक. जनरली 150 फॉर हाईवेज एंड फॉर रूल रोड्स 100 mm वी सिलेक्ट. 100 फॉर रूल रोड्स एंड 150 फॉर एक्सप्रेस वे. यस सर. वहाँ तो हम IRC 62 SP 62 पे चले जाते हैं. यस सर. लेकिन बहुत सी सड़कों पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी ट्रैफिक आने लगता है. यस सर. सो आपको सर फिर IRC 58 यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर लोड. 58 यू कैन यूज़ एंड यू कैन डिज़ाइन. आपका जो भी पेमेंट होगा आप 58 के थ्रू यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं. इसमें क्या है कि हो सकता है कि लोड ज़्यादा हो. यस सर. बहुत छोटे व्हीकल चलते हैं तो लोड ज़्यादा हो. यस सर. CVPD आपका 450 से कम. यस सर. There is also possibility. यस सर, एग्जैक्टली. In that case, can we use this IRC? बट सर अगर आइडियल कंडीशन जो IRC रिकमेंड करता है उसमें तो यही है कि आपका 450 और सब कुछ लोडिंग आपका उसके अकॉर्डिंग है, 450 के अकॉर्डिंग है. बट ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं हो. हाँ. यस सर. ओवरलोडिंग. यस सर. IRC ऑफिस सर ओवरलोडिंग तो अलाउ नहीं करते, बट अगर आपको करना है तो यू कैन यूज़ 58 बिकॉज आपको यू हैव टू. फ्लेक्सिबल पेमेंट में तो VDM आ जाते हैं ना सर. इसमें फैटिग है सर. इसमें फैटिग, इसमें क्यों नहीं आते? इसमें फैटिग डैमेज, फैटिग. डिपेंडिंग ऑन MSA. तो MSA आ जाता है, लेकिन ये CVPD पे है. CVPD में भी डिफरेंट. बट इसमें फैटिग आ रहा है सर. आपका फैटिग एनालिसिस, सपोज आपका एक लोड है और पेमेंट है, आपका ट्रैफिक मूव हुआ, देन अगेन कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तो कितना वो डैमेज कर रहा है. काइंड ऑफ सेम वो VDF है, इसमें कितना वो फैटिग ले पा रहा है बिकॉज कंक्रीट में फैटिग होता है.
सो कितना वो फैटिक, दैट इज वाई वी डू फैटिक डैमेज एनालिसिस, CFD, क्यूमुलेटिव फैटिक डैमेज एनालिसिस, काइंड ऑफ सेम फैटिक डैमेज एनालिसिस में करते हैं, उसमें VDF हम यूज़ करते हैं लाइक दैट। हम अभी देखेंगे कितना, एक मैं एक्सप्लेन आपको एक्सेल शीट एक बार शो कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है डीएलसी का रेट क्या रहता है? डीएलसी किस रेट की? सर DLC 2 कंडीशंस हैं फॉर मॉर्थ सेज 7 MP at 7 days 7 days. and ISC says 10 MP at 7 days. So M15, M20, M25 के आसपास we can have for DLC. डिपेंड, बट सर ये एक रिकमेंडेशन है 7 MP at 7 days और 10 MP at 7 days। 7 days पे 10 MP इट मीन्स M25 20 हो गया, सो 15-20 के आसपास या M15 के आसपास वी कैन टेक फॉर द DLC एंड ज़ीरो स्लम्प कॉन्क्रीट। यस सर, डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इफेक्टिव K वैल्यू फॉर सबग्रेड इज़ 8%, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। अब सबग्रेड का 8% है, सो मेरे पास सब बेस कौन सा है, GSB, राइट, आई एम यूजिंग GSB। सो मैं टेबल पर जाऊंगा, टेबल पे 8 पे देखूंगा, 8 के बाद देखूंगा कौन सा मेरा GSB के लिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन वील हैव आर इफेक्टिव K वैल्यू। ये सर आपका ये लिखा हुआ है, प्रोवाइड अ DLC सब बेस ऑफ थिकनेस 150 mm विद अ मिनिमम 7 day compressive strength of 7 MPa at 7 days, 7 MPa at 7 days for DLC. Elastic modulus of subgrade reaction 285 from table 4, right, this is your step 1, step 2। step 1 में आपने K value, your subgrade CBR, everything you have find out, then 125 micron, then step 2 selection of flexural strength of concrete, this is about the concrete। 28 day compressive strength is 40 MPa because M40 we are taking, so 40 MPa, then 98 will be 1.1, then 4.5, then 1.1, 4.95 we are going to use। Then design traffic 365 multiplications basic, right, then average number of axles, average number of axles comes through the axle load spectrum, एवरेज नंबर ऑफ एक्सेल्स पर कमर्शियल व्हीकल्स, एक कमर्शियल व्हीकल पे कितने हमारा एक्सेल है, सो एवरेज करके वी कैन फाइंड आउट 2.35, इट कैन बी 2.5 ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। देन टोटल टू वे एक्सेल रोड रिपीटिशंस ड्यूरिंग द डिजाइन पीरियड विल बी 2226, then multiplications multiplied with the 2.35, then this is our total load axle load repetitions। then number of axles in predominant directions we have seen कितना उसका axle survey के through, then 0.5 generally we take, then multiplication, then design traffic for lateral placement of axles 25% in predominant direction, IRC has given 0.25 25%। ये 2.35 कैसे लिया एवरेज नंबर ऑफ एक्सेल्स पर कॉमन? सो वो एक्सेल सर्वे जो हम करते हैं, एक्सेल लोड स्पेक्ट्रम जो हमने फ्लेक्सिबल में शायद डिस्कस किया होगा, हाँ 2.35 2.5 भी होता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। सो नाइट टाइम ट्रैफिक 12 hours 66 multiplication, then 60% we take during the night, so 0.6 multiplied, then daytime 12 hours are, because obviously 60% उसमें लिया है, then 40% will take in this, so multiplication, then daytime 6 hour axle load spectrum will be daytime में, because it is about the 12 hours, so 6 hours we consider, so half, this is 6 daytime 6 hours, this is 12 hours, this is 6 hours, just हमने half किया है। then design number of axle load repetitions for bottom up cracking will be this, for bottom up cracking डिज़ाइन करने के लिए we are having this vehicles, then night time के लिए that was for 12 hours, half करेंगे 6 hours के लिए आ जाएगा। then number of commercial vehicle spacing मैंने वो आपको बताया था, लाइक दोनों एक्सेल उसके ऊपर होने चाहिए, जब हमने सर्वे किया तो दोनों एक्सेल में हमारा आ रहा था 55%, सो 55% को हम लेंगे यहाँ पे, यानी कि इसका 55%, बिकॉज अदर लाइक 45% आर हैविंग देयर एक्सेल्स ऑन द अनदर स्लैब, 55% व्हीकल्स आर ओनली हैविंग देयर एक्सेल्स ऑन द सेम स्लैब, सो दैट्स वाई 55%। देन सेम प्रोपोर्शन फ्रंट एक्सेल का प्रोपोर्शन हमने जब एक्सेल लोड स्पेक्ट्रम किया, सो फ्रंट एक्सेल इज 0.5 0.525, सो ऐड करके 1, देन हमारा जो वो है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर PUC के लिए PUC में मल्टीप्लाई करेंगे, TDC वाले वैल्यूज़ के लिए TDC में मल्टीप्लाई करेंगे, सो
So this is for BUC, this is for TDC. BUC vehicles multiplied by 0.45 this, BUC vehicles this multiplied this, for TDC vehicles into 4.5 this. So हमारा exactly proportion आ गया है. Then we have cumulative fatigue damage will do find out and done. आपका थिकनेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से 300, देन 300 पे अगर आपका सेफ है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज नहीं तो देन 320 लाइक दैट. सो दिस इज़ अबाउट द मैनुअल कैलकुलेशंस. हम बैठेंगे कैलकुलेट करेंगे देन ऑल दिस. हमारे पास एक एक्सेल शीट भी है, IRCS गिवन एक्सेल शीट. सो डायरेक्टली हम एक्सेल शीट पे अपने वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़. ये दिस पोर्शन इज योर इनपुट, यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ ऑन द लेफ्ट साइड एंड दीज आर योर कैलकुलेशंस दैट ऑटोमेटिकली डज. मैं जूम कर लेता हूँ एक बार. सो आप कहीं भी क्लिक करेंगे सो आपको सब फॉर्मूलेज ऑलरेडी कैलकुलेट मिलेंगे. मैंने यहाँ पर कहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, आपको फॉर्मूला आपके पास गिवन है. सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल. आपको बस वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन सब हो जाएगा. इनपुट वैल्यूज दिखा दीजिए. मैं एक बार आपको सब हम एग्जाम्पल एक चेक करेंगे अभी. या कैरेज वे आपका 4 लेन डिवाइडेड, शोल्डर्स टाइड येस और नो वी कैन पुट. देन ट्रांसफर जॉइंट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड 4.5 and 3.5. देन डिजाइन पेड आई हैव टेकन एज 30. देन कमर्शियल व्हीकल्स ए वैल्यू 6000. देन एनुअल ग्रोथ रेट 7.5%, 5% जो भी है. देन इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट. फॉर्मूला लग गया है, 365 मल्टीप्लाइड कैलकुलेट आपका आ जाएगा. Then average number of axles 2.35. Then commercial it will automatic. एवरेज नंबर ऑफ एक्सेल का क्या कैसे निकालते हैं? सर जैसे हमने स्पेक्ट्रम लोड सर्वे किया, वन व्हीकल इज हैविंग लेट अस से tandem axle or 2 axles, another vehicle is having 5 axles, another is having 3 axles. So उनको combine करके सपोज आई हैव 100 व्हीकल्स और उसके ऊपर डिफरेंट एक्सेल्स हैं. सो पर व्हीकल कितना एक्सेल, बिकॉज हम ऑटोमेटिक मीन दिख रहा है. काइंड ऑफ हाँ सर एजमेटिक कितना एक्सेल पे कितना व्हीकल है, एक एक वेटेड कहाँ है? नंबर ऑफ व्हीकल्स भी डिवाइड कर सकते नहीं सर एग्जैक्टली वो मीन नहीं है, एग्जैक्टली मीन नहीं है. यस सर, बिकॉज ऑब्वियसली सर ज़्यादा एक्सेल्स होंगे तो ऑब्वियसली इट विल डैमेज मोर. ज़्यादा एक्सेल्स इट विल डैमेज मोर, सिंगल एक्सेल तो इट विल डैमेज लेस. सो वेटेड वी हैव टू डू दैट. चले पीछे में पर्दा लगा दीजिए, शार्प हो जाएगा. सो लाइक दिस ये हो जाएगा. देन प्रोपोर्शन वी हैव डन 0.5, 0.4. अच्छा, वैल्यू ऑफ ई और पॉइजन रेशियो वगैरह है, यानी 30 और 40 के लिए अलग-अलग मिलते हैं क्या? हाँ सर डिपेंड. यस सर, जैसे हमारा लाइक M40 के लिए 4.5 वी फ्रैक्चर्स एंड 4.5 लेते हैं, बट ई वैल्यूज विल बी सेम एंड आपका अल्फा इट विल बी सेम बिकॉज इट इज कॉन्क्रीट, सो इट विल बी काइंड ऑफ सेम. सो आपने लिया अपना वैल्यूज़ के वैल्यू आपने पुट किया, इनपुट 24, लाइक यूनिट वेट 24, 25 भी हो सकता है जो अभी आपका 24, 23 है. देन 28 फ्लैक्चर स्ट्रेंथ इज 4.5. मैक्सिमम डे टाइम, यस सर, मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर डिफरेंशियल 16.8 उस टेबल से, उस चार्ट से. देन मिनिमम 13.4, इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली like that. And finally right, e value Poisson's ratio is radius of relative stiffness and all. जो पीडी सर पूछ रहे थे, Yes, sir. पॉइजन वैल्यू फॉर M30 and 40 सेम ही रहेगा ना? Yes, 0.15 वी कैन टेक. सो अभी हम ट्रायल करते हैं. अभी 0.28 राइट मीन्स 28 वी आर टेकिंग. सपोज मैं ट्राई करता हूँ, लेटेस्ट मैंने अपना वैल्यूज पुट कर दिया है. लेटेस्ट से मैं डिज़ाइन करता हूँ 20 सेंटीमीटर. देखते हैं हमारा इस वैल्यूज़ के लिए, इस ट्रैफिक के लिए हमारा 20 सेफ है या नहीं. आपको कुछ नहीं देखना है, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट.
yes. Sum for BUC and TDC is 6,000 something. It should be less than 1, so it is unsafe. It is also saying डिज़ाइन इज़ अनसेफ बिकॉज आपका क्यूमुलेटिव फैटिक डैमेज यानी कि आपका स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं. स्ट्रेंथ इज़ 4.5, स्ट्रेसेस आपके आ रहे हैं 4.5 से ज़्यादा, सो इट इज़ अनसेफ. अब मैं क्या करूँगा, आई हैव 2 ऑप्शन बिकॉज इट इज़ अनसेफ और 20 सेंटीमीटर इज अनसेफ. सो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ईदर टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट M40 की जगह M80, M90, 100, और सेकेंड ऑप्शन इज़ थिकनेस. मैं थिकनेस इंक्रीज कर दूंगा, उससे भी हमारा मैनेज हो जाएगा. सो लेट अस सी. सो कौन बोल रहे हैं सर? हाँ, इफेक्ट पड़ेगा सर, इफेक्ट पड़ता है एग्जैक्टली. अभी मैं क्या करता हूँ, आपका थिकनेस का या थिकनेस चेक करते हैं 0.25, 25 पे चेक करते हैं. स्टिल इट इज़ अनसेफ बट यू कैन सी इट वॉज 6,000, अभी 24 आ गया है, राइट. अब पहले 6,000 में था, अभी 24 आ गया है, बट इट इज़ स्टिल अनसेफ. सो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम और चेक करते हैं. यतिन जी, एक Yes, चीज sir. और पूछना था, जैसा कि सर ने कहा कि अगर 2.35 लिया आपने, मतलब 2 एक्सेल ज़्यादा चलते हैं और बाकी एक्सेल कम चल रहे हैं वहाँ पे, तो वेटेड एवरेज आपका 2.35 आ गया. सपोज हमारे रूरल रोड पे यस सर, सिर्फ और सिर्फ डबल एक्सेल ही चल रहा है, किसी पर्टिकुलर रोड पे 1 आ जाएगा, 1 आ तो जाएगा. वहाँ नहीं, वहाँ 2 लेंगे, 2.35 जो आपने लिया है वो 2 लेंगे कि 2 से भी कम ले सकते हैं? नहीं सर, 2 से कम आई थिंक 2, हाँ, यस सर, 2 ही जाएगा. यस सर. सो मैंने भी 20 पे चेक किया अनसेफ है, 25 पे चेक किया अनसेफ है. मैं ट्राई करता हूँ 300 mm हम डिज़ाइन करते हैं, लेट अस से 300, 0.3. देखिए लेस देन 1 डिज़ाइन इज सेफ, यानी कि आपको डिज़ाइन करना है 30 सेंटीमीटर बस. सर मेरे एक और है. Yes, please, sir. Please. 28 इसको करिए. थिकनेस. हाँ, thickness. ठीक है सर. 280. ठीक है और सर. अगर 2.35 को 2.1 करिए जरा. एक सेकंड, ये आपका 28 आपने बोला ना सर. हाँ. 2.5 35 जो आपकी एकदम बिल्कुल ये. हाँ, इसको आप 2.1 करिए. अनसेफ आ रहा है सर. अच्छा 2.1 सब कैलकुलेट करने के बाद इट विल टेल यू सेफ और अनसेफ. ये कॉम्बिनेशन है बिकॉज जिसमें आपको बता दूँ, ये पूरा हम तो बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आउटपुट देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं. हाँ, ऐसा नहीं होता है, इसमें पूरा ये सब पूरा डैमेज कैलकुलेट हो रहा है. इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो एक्सेल लोड स्पेक्ट्रम. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर. एक्सेल लोड स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सर, मैं आपको एक बार चेक कर देता हूँ. एक्चुअली मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बताने वाला था. ठीक है सर, 0.28 पर आपका अनसेफ है. 400 बना देते हैं, बहुत पैसा हमारे पास, 400 का हम बना देते हैं थिकनेस. सेफ बट 0. ये आपने ज़्यादा बना दिया, मतलब ज़्यादा आपका क्या सेफ हो गया है, मतलब ज़्यादा ओवर डिज़ाइन हो गया है बिकॉज 0 ही आ गया है. एंड दिस इज़ सेफ. सेफ तो आपका आप 500 बना दो, 100,000 बना दो, बट इट इज़ सेफ. बट यू हैव टू चेक, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, राइट. तो इसमें एक्सेल लोड स्पेक्ट्रम आपका फाइनल यू हैव टू पुट द वैल्यूज. मैं आपको शो कर देता हूँ. इसमें शो करने के बजाय बेटर रहेगा इसमें से. यस सर, राइट. आपने सर ट्रैफिक सर्वे किया प्रॉपरली, आपने चेक किया, आपने क्लासेस बना लिए अकॉर्डिंग टू IRC. क्लासेस बना लिए फॉर सिंगल एक्सेल 185 किलोमीटर टू 195, 175 टू 185 लाइक दैट आपने क्लासेस बना लिए. तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि 18% ऑफ व्हीकल्स आर हैविंग लोड बिटवीन दिस 180, 17% व्हीकल्स आर हैविंग लोड बिटवीन दिस वैल्यू, 2% vehicles are having load between 125 to 135 kilonewton, like that. Total is 100, total like that. And for tandem axle,
classes is 380 to 400. So 14% of your tandem axles are having a weight between 380 to 400 kilonewton. This is This is axle load. yes sir, axle load. No, it's axle load spectrum, axle load like that. So वहाँ पे because 10 difference 20 difference 30 like that you have to prepare and you have to just put into your Excel sheet. ये मैंने उसी में explain like Excel sheet के अंदर सारा data ये जो है. So design of joints also we have types of joints. We have contraction joints, construction joint, expansion joints. So इसका separately we have design formulas. We have FB equals to K MDS, then pi, then 2 by Z. All these calculation we can do and we can have all this. These are the doll bars, 32 mm, then covered with epoxy or either with PVC sheet. So this is about the tie bars. How do we design tie bars? Area of steel we have to calculate B. B is your lane width, then your F, then W upon steel area and all that. So this is about the tie bars like that. इसका भी एक sheet है but I अभी right now I do not have, but basic formula सही है. Just values put करिए अपना and then you can find out your stresses, what stresses are coming onto your bars. So contraction joints, transverse joints which relieve the tensile stresses, the spacing should be limited to 4.5 meters to prevent top-down cracking at night. Construction joints should be placed at the location of the contraction joints except in the emergency with a key joint that may be used, expansion joints and longitudinal joints. So this is like IS 58 has been now completed.